السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بڑی ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ یسرنا القرآن اکیڈمی حیدرآباد تلنگانہ کے زیر اہتمام دوسرا کل ہند تحریری مسابقہ برائے طلباء و طالبات منعقد کیا گیا تھا۔ ہمارے اس دوسرے مسابقے میں قرآن مجید سے متعلق 5 موضوعات دیے گئے تھے، جس کا پہلا موضوع تھا اردو تفاسیر کا تقابلی جائزہ، اور دوسرا موضوع اردو زبان کی گمشدہ تفاسیر، اور تیسرا موضوع غیر مسلم مفکرین کی تفسیری خدمات، چوتھا موضوع خواتین کی تفسیری خدمات، پانچواں موضوع عربی تفاسیر کے اردو ترجمے، تعارف و تجزیہ۔ ان 5 موضوعات کے تحت پورے ہندوستان سے 455 طلباء اور طالبات نے جو مختلف مدارس اور یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، الحمدللہ حصہ لیا ہے۔ ہمارا یہ اعلان 13 اگست 2020 کو ہوا تھا اور 15 سپتمبر 2020 تک مقالے جمع ہو چکے ہیں۔ 17,000 صفحات پر مشتمل یہ مقالے جات الحمدللہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ ان تمام مقالات کی نگرانی جلیل القدر علماء کرام نے کی ہے، جن میں فضیلت الشیخ مولانا محمد عبدالہادی عمری مدنی، صدر مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ، فضیلت الشیخ عبدالحفیظ مانوی عمری دوحہ قطر، فضیلت الشیخ محمد ابراہیم عمری ہنچالی استاذ جامع دارالسلام عمرآباد، فضیلت الشیخ سید فتح شریف عمری ازہری دوحہ قطر، فضیلت الشیخ محمد رفیع کلوری عمری مدیر مسئول ماہنامہ راہ اعتدال عمرآباد نے کی ہے۔ یہ تمام مقالے ہمارے انہی علماء کرام نے چیک کیے ہیں اور تمام طلباء اور طالبات کو نمبرات عطا کیے ہیں، اور آج 27 مارچ 2021 بروز ہفتہ کو نتائج کا اعلان ہم کر رہے ہیں۔ یہ نتائج کا اعلان بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کرونا کی وبا کے سبب جو لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے مؤخر کیا نتائج کو، اور اس دن میں تمام طلباء اور طالبات کو اور تمام مہاجرین کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے۔ اس میں 3 طلبات جنہوں نے انعام اول، دوم اور سوم حاصل کیا ہے، پہلے ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انعام اول کے مستحق ہوئے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے طالب علم محمد مکرم بن محمد معظم۔ انہیں 50,000 روپے نقد انعام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ان کا مقالہ پہلے نمبر پر آیا۔ انعام دوم کے مستحق قرار دیے گئے ہیں مدرسہ اشاعت القرآن بہار کی طالبہ زینب بنت سعد عالم۔ انہیں 30,000 روپے نقد انعام عطا کیا جاتا ہے۔ تیسرے انعام کے مستحق قرار دیے گئے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طالبہ جن کا تعلق اعظم گڑھ یو پی سے ہے، نحلہ سلامت اللہ۔ انعام سوم 20,000 روپے نقد انہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں طلبہ نے کافی جد و جہد کے ساتھ ماشاءاللہ مقالہ لکھا ہے۔ مجموعی طور پر جو مقالے کا عنوان ان لوگوں نے لکھا ہے وہ خواتین کی تفسیری خدمات پر ہے۔ اس کے بعد 10 اعزازی انعامات کے حقدار جو طلبہ ہیں، ان کی تفصیل اس طریقے سے ہے۔ ندا جاوید بنت اسلم جاوید دہلی، عائشہ صدیقہ شریعہ کالج نئی دہلی، انہیں 1,000 روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اعزازی انعام ہے زینب بنت یعقوب حیدرآباد، جامعۃ المفلحات الازہریہ کی طالبہ ہیں، انہیں 1,000 روپے انعام دیے جا رہے ہیں۔ تیسرا اعزازی انعام ساجد خان بن انس خان جامعی، ایولا ناسک کے رہنے والے ہیں، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے اننت پور کے یہ طالب علم ہیں، انہیں 1,000 روپے انعام دیا جا رہا ہے۔
चौथा एजाज़ी इनाम अमतुर रहीम सुमामा अल मोहम्मदी बिनत मोहम्मद नसीरुद्दीन हैदराबाद, इन्हें 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। पाँचवें इनाम के मुस्तहिक करार दिए गए हैं अब्दुल खालिक बिन मोहम्मद मेहरुद्दीन, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यूपी से इनका ताल्लुक़ है, 1000 रुपये इनाम। छठे एजाज़ी इनाम के हक़दार हैं फ़ातिमा हक़, झारखंड रांची यूनिवर्सिटी की ये तालिबा हैं, इन्हें 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। सातवें इन एजाज़ी इनाम के हक़दार हैं शेख अनस बिन अज़ीज़ुल्लाह कासमी, रायचोटी दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म हैं, इन्हें 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। आठवां एजाज़ी इनाम अब्दुल रऊफ़ हाज़िक़ बिन अब्दुल रज़ाक़, इंडी बीजापुर से इनका ताल्लुक़ है, जो जामिया दारुस्सलाम उमराबाद तमिलनाडु के तालिब इल्म हैं, 1000 रुपये इन्हें इनाम दिया जा रहा है। नवा एजाज़ी इनाम अज़हर पाशा उमरी बिन अनवर पाशा, बेंगलुरु से ताल्लुक़ है, कुलिया नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी से इनका ताल्लुक़ है, 1000 रुपये इनको इनाम दिया जा रहा है। 10वें इनाम के हक़दार हैं खौला मोहम्मदी उम्मे मुसअब, शोलापुर से इनका ताल्लुक़ है, 1000 रुपये। इस तरीक़े से कुल 13 इनामात यहाँ पर दिए गए हैं, अव्वल दुवम सुवम के अलावा 10 एजाज़ी इनामात। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम हज़रात के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मुम्तहिनीन का, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद और कद्दो काविश से हमारे मक़ालात को चेक किया है और तलबा और तालिबात के लिए नंबरात दिए हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई जानिबदारी इख्तियार नहीं की गई है, बल्कि जो भी था पूरे हिंदुस्तान से जो हक़दार थे उनको उनका ये हक़ जो है अता किया गया है। इस मौके पर हम अपने सारे के सारे मुआविनीन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह यस्सरनल कुरान एकेडमी के तहत बहुत जल्द हम तीसरा मुसाबिका भी इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन काविशों को कबूल फ़रमाएँ और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को और बच्चों को इस्लाम का ये शऊर अता फ़रमाए। इनाम जीतने वाले तलबा को किस तरह से आपने इनाम ट्रांसफ़र किया, आपने बुलाया या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया? आज हम उनके इनामात के नामों का ऐलान कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इंशाअल्लाह उनसे जो राबिता इस ऐलान के बाद हो जाएगा तो हम उनको ये इनामात डीडी ड्राफ्ट की शक्ल में देंगे, डीडी बनाकर हम उनके हवाले कर देंगे। चीज़ अब आपने कहा कि कई लोगों ने तहरीर दी है, तो ये कोई पर्टिकुलर जमात की तरफ से, जमात के लोग ही ले सकते हैं या सबके लिए ओपन था? ये असल में जो मौज़ूआत हम मुंतखब किए हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए किए हैं। उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम ज़ख़ीरा जो इस वक्त मफक़ूद हो चुका है, हम यस्सरनल कुरान एकेडमी के ज़रिए से हमारे इस ज़ख़ीरे को, इस्लामी ख़जाने को हम मंज़र आम पर लाना चाहते हैं। कई उलमाए किराम की तफासिर हैं जो 30-30 जिल्दों में लिखी गई थी, 45 जिल्दों में लिखी गई थी, लेकिन जंग आज़ादी की नज़र होकर या तो लाइब्रेरियों को जला दिया गया या तो इस्लामी ज़ख़ीरे को, किताबों को ख़त्म कर दिया गया है। हमारी ये जिद्दोजहद है कि यस्सरनल कुरान एकेडमी वो सारी चीज़ों को फिर दोबारा कलेक्ट करके उम्मत के सामने लाना चाहती है, ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात मेहनत किए हैं वो मेहनत लोगों के सामने आए। हमारे इस मक़ाले का और हमारी इस तंज़ीम का पर्टिकुलरली हम किसी जमात की तरफ इंतसाब नहीं कर रहे हैं, हमारा इंतसाब उम्मत मुस्लिमा की खिदमत की तरफ है। अब आइंदा मुस्तक़बिल में कोई और कॉम्पिटिशन आप कराने का इरादा रखते हैं? कॉम्पिटिशन भी जारी है, कोई एक ख़ास कुरान मजीद से मुताल्लिक़ उन्वान। अब जैसे देखिए कुरान मजीद पर वक्तन फ़ौक़तन एतराज़ात हो रहे हैं और ये सिलसिला शुरू से चले आ रहा है। अभी वसीम रज़वी का फितना भी हमारे सामने आया। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे एतराज़ात जो कुरान मजीद पर किए गए हैं, इसके ताल्लुक़ से मवाद निकाल कर हमारे यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, मॉडर्न एजुकेटेड हैं, उन लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि गैर मुस्लिमों का कोई भी जवाब अगर ऐसा आया तो वो हमारी किताब ये पढ़कर जो है वो जवाब दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अब वो आपके जो कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, आपके जो जो भी सरगर्मियाँ होने वाले हैं, अगर उसके बारे में किसी को मालूमात करना है तो आपसे कैसा रब्ता पैदा करें? जी, यस्सरनल कुरान एकेडमी की हमारी अपनी एक साइट है और उसके अलावा हमारे पास फेसबुक है और हम क्या नाम से है? यस्सरनल कुरान एकेडमी, यस्सरनल कुरान एकेडमी तेलंगाना। तो हम इसके ज़रिए से जो है अब हमारे पास साबिक़ा के अब के जितने तलबा और तालिबात हैं, इनका पूरों का एक ग्रुप है हमारे पास। हम इसके ज़रिए से अखबारात के ज़रिए से जो है इसका अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो चीज़ पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तक आप ये कितने बार करेंगे? ये दूसरा मुकम्मल हुआ हमारा, ये दूसरा कंपटीशन मुकम्मल हुआ। साल में एक बार? साल में एक मरतबा। रमज़ान से शुरू होता हमारा का, रमज़ान ही में उमूमन हम लोग ऐलान करते हैं।